students, today I am going to start the first chapter, The Lost Child, which is from your book Moments. So let's start the chapter. The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? So we are going to see that a child कहाँ जाता है? A fair, मेले में. किसके साथ? With his parents. He is very happy. वो बहुत खुश है, excited है and क्या क्या उसे चाहिए? Sweets and toys. But his parents don't buy them for him. उसके जो parents हैं वो नहीं खरीद देते हैं. Why then does he refuse when someone else offers them to him? अब वही चीज़ें स्वीट्स और टॉयज़ कोई और व्यक्ति उसको देता है लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देता है. सो वी हैव टू सी इन द स्टोरी वाई द चाइल्ड रिफ्यूज when someone else offers them to him. So let's start the chapter. It was the festival of spring. ये जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, वो किस मंथ का है? स्प्रिंग. एंड स्प्रिंग किस मंथ में आता है? डू यू नो? ऑलमोस्ट इन February. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a galley humanity. So from the wintry shades means winter अभी तुरंत ख़त्म हुआ है और उसके बाद विंटर के ख़त्म होने के बाद क्या, कौन सा मंथ आता है? स्प्रिंग का. So from the wintry shades of the narrow lanes and alleys emerge means वो जो narrow passage है, जो पथ है, emerge came out. कौन आ रहे हैं? A galley clad humanity. Galley means happily. Clad means cloth means कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही happily, बहुत ही खुश हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए उस तरफ से आ रहे हैं. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग जो हैं वो पैदल चल रहे हैं, कुछ जो हैं वो घुड़सवार कर रहे हैं और कुछ जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं? बुलक कार्ट्स. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा बच्चा जो है, लड़का जो है, वो दौड़ रहा है between his father's leg and brimming, पूरा भरा हुआ है. brimming का मतलब क्या होता है? To be full of a liquid that it flows over the edge. You can understand this way. जैसे ग्लास में जब हम लोग पानी भरते हैं, जब वो पूरा भर जाता है उसके बाद हम लोग और अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो गिरने लगता है, झलकने लगता है. उसी तरह से ये जो बॉय है यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा है? उसका खुशी. मीन्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर मीन्स इतना ज़्यादा खुश है कि वो दिखाई दे रहा है. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. जो पेरेंट्स हैं वो कॉल कर रहे हैं, कम चाइल्ड कम, as he lagged. Lagged means left behind, means वो पीछे रह जा रहा है. Why? Because he is fascinated, attracted by the toys in the shop that lined the way. जो टॉयज़ जो वो देख रहा है शॉप्स में जो लगे हुए हैं उसके कारण वो क्या हो जा रहा है? अट्रैक्ट हो जा रहा है, पीछे रह जा रहा है अपने पेरेंट्स से. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. So he hurried, जैसे उसके पेरेंट्स बुलाते हैं वो हड़बड़ा के आगे बढ़ता है उनकी ओर. Why? Because his feet obedient, उसके पैर जो है बहुत ही obedient है, आज्ञाकारी है. When he heard the voice of his parents that they are calling, but his eyes still lingering. Lingering means lasting for a long time. किधर देख रहा है उसका आइज? बहुत देर तक. Towards the toys. Receding means जब तक कि disappear नहीं हो जा रहा टॉय तब तक वो उसकी जो आंखें हैं वो टॉयज को देख रहे हैं. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes.
As he came to where, जहाँ पे वो बैठे हुए हैं वहाँ पहुँचता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, उसके दिल में जो इच्छा हो रही थी टॉयज़ खरीदने के, इवन दो वो जानता था कि वो पेरेंट्स जो हैं वही पुरानी बात कहेंगे, विथ हिज कोल्ड, कोल्ड मीन्स हियर विदाउट एनी फीलिंग ऑफ अफेक्शन, बिना किसी फीलिंग के बस सीधे क्या बोल देंगे, स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, ना, कि नहीं टॉयज़ खरीद देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो जानता है कि पेरेंट्स नो बोल देंगे लेकिन फिर भी ही प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. Tyrant means cruel. So his father looked at him red-eyed, आंखें जो है एकदम red है, and the same familiar tyrant means cruel way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger he to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसकी मदर जो है शी इज़ मेल्टेड बाय द स्पिरिट ऑफ द डे, मीन्स इतना सुहाना दिन है कि उसकी मदर जो है एकदम पिघल गई है, वॉज टेंडर, कोमल, एंड गिविंग हिम द फिंगर, उसका ध्यान जो है, बच्चे का जो ध्यान है वो दूसरे तरफ आकर्षित करती है और कहती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। हमारी मदर भी हम लोगों को इसी तरह से दूसरी ओर हमारे ध्यान जो है आकर्षित करती है, उसी तरह उसकी मदर भी दिखाती है। किस ओर दिखाती है? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. तो उसकी मदर जो है वो किस ओर दिखाती है? द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड मीन्स एक फील्ड है जो कि क्या लगा हुआ है उसमें? सरसों। एंड पेल मीन्स डल, कलरलेस लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि गोल्ड कैसे पिघलता है तो येलोइश जैसा दिखता है, उस तरह से बहुत दूर दूर तक मस्टर्ड फील्ड दिखाई दे रहा है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. A group of dragonflies, a group of dragonflies means you can just say जो तितली होती है, we are bustling about on their gaudy, उड़ रही थी विद देयर, गाउडी मीन्स एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोई, बहुत ही ब्राइट और शोई विंग्स थे उन ड्रैगन फ्लाइज के। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, और किसको परेशान कर रहे थे? एक अकेला ब्लैक बी और बटरफ्लाई मधुमक्खी, जो कि इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फॉर द फ्लावर्स, वो जो ब्लैक बी है वो क्या ढूंढ रहा है? स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, और ये जो ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज है उसको परेशान कर रही है, उसका पीछा कर रही है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। द चाइल्ड जो है वो किधर फॉलो कर रहा है? फॉलो देम, वो जो बर्ड्स जो फ्लाइज हैं उनको फॉलो कर रहा है विथ हिज गेज मीन्स स्टेयर, अपनी आंखों से उनको देख रहा है, स्टेयर कर रहा है। कब तक देख रहा है? जब तक कि वो अपने विंग्स को रेस्ट नहीं कर ले रही हैं ताकि वो जाके उसे पकड़ ले। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने जाता है जो तितली है वो फड़फड़ा के उड़ जाती है। When he had almost caught it in his hand, जब उसे लगता है कि ऑलमोस्ट उसने वो तितली को पकड़ लिया है, तितली जो है वो उड़ जाती है। Then his mother gave a cautionary call. Come child, come on to the footpath. उसकी मदर जो है फिर से एक बार उसे एक कॉशनरी कॉल, एक सावधान करने वाला कॉल करके बुलाती है, कम चाइल्ड ऑन टू द फुटपाथ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. उसका जो बच्चा है फिर से अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ के आता है, gaily means very happily, and walked abreast means side by side and facing the same way, बस for a while, कुछ देरी के लिए ही। Being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. एक बार फिर से वो बच्चा जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है किन चीज़ों को देखने में? लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ, जो कि जो पथ है, जो रास्ता है, वहाँ पे
टीमिंग, कमिंग आउट मीन्स मड होगा, वहाँ से निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वर्म्स। और वो जो इंसेक्ट्स और वर्म्स जो हैं वो जो छिपे हुए जगह है, जो मड है, जो मिट्टी है, वहाँ से निकल रहे हैं। क्या इंजॉय करने के लिए? सनशाइन। और उन्हीं को देखने में बच्चा जो है फिर से पीछे रह जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. फिर से उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, एंड कॉल हिज, और उनके पेरेंट्स कहाँ बैठे हुए हैं? ग्रुप ऑफ, ग्रुप मीन्स व्हाट? ग्रुप ऑफ ट्रीज। और वो जो ग्रुप ऑफ ट्रीज है वहीं पे क्या है? एक वेल है। उसी वेल के एज में उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं और बच्चे को बुला रहे हैं। और वो बच्चा जो है ही रैन टुवर्ड्स देम। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. एक बार फिर से भूल जाता है अपने पेरेंट्स को कि वो बुला रहे हैं, और जैसे ही वो ग्रोव में, वो जो ग्रुप ऑफ ट्रीज जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे जैसे ही एंटर करता है तो कुछ फूल जो हैं उसके ऊपर गिरते हैं। एंड ही फॉरगेट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। एंड ही बिगैन टू गैदर, और इकट्ठा करने लगता है पेटल्स को, फूल को। बट लो, ही हर्ड द cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. और जैसे ही वो गैदर कर रहता है उन पेटल्स को, उन पंखुड़ियों को, फूल की पंखुड़ियों को, वो क्या सुनता है? cooing of the doves, singing of the doves. और मेरे पेरेंट्स को चिल्ला के बोलता है, पेरेंट्स डव डव, और फिर से भूल जाता है। अब किस चीज़ को भूल जाता है? पेटल्स को। Come child come, they called to the child, who had now gone running in wild caper round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. So again वो जो child है had now gone running in a wild caper. Caper means a wild playful movement, means अब जो वो दौड़ रहा है अपने पेरेंट्स की ओर, तो वो क्या कर रहा है? एक बनियन ट्री है, वहाँ पे गोल 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 घूम रहा है। एंड गैदरिंग, और फिर उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको पकड़ते हैं। एंड टुक द नैरो विंडिंग पाथ, फुटपाथ विच लेड टू द फेयर, और उस रास्ता को पकड़ते हैं जो कि मेले की ओर जाता है, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. So जैसे ही वो लोग नज़दीक पहुंचते हैं, नियर द विलेज, द चाइल्ड कुड सी, क्या उसने देखा? बहुत सारे फुटपाथ जो है, और वो भी जो फुटपाथ है फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स मीन्स ह्यूज क्राउड, मीन्स बहुत लोगों का जो भीड़ है वहाँ पे। कन्वर्जिंग, गैदरिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, मीन्स वो मेले में पूरा बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं। और एक बार खातिर वो क्या होता है? फेल्ट एट मीन्स रिपेल्ड, रिपेल्ड मीन्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मीन्स वो थोड़ा डर जाता है उतना भीड़ देख के। एंड अगेन फैसिनेटेड, अट्रैक्ट होता है बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. So जैसे ही वो एंटर करता है, तो एंटर जब कर रहा है उसी समय एंट्री में ही कौन सा शॉप है? एक स्वीट सेलर का, स्वीट मीट सेलर। वो क्या चिल्ला रहा है? गुलाब जामुन, देन रसगुल्ला, बर्फी, एंड कहाँ बैठा हुआ है? कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड द क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, बहुत भीड़ लगा हुआ है एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मीन्स you have just seen the sweet seller shop, so you have just seen कि किस तरह से एक सीढ़ी जैसा बना हुआ रहता है, और वहाँ पे लोग जो है, वहाँ पे जो स्वीट्स है बहुत अच्छा से सजाया हुआ रहता है, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से दिख रहा होता है। तो वहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी हुई है लोगों की, और वो जो स्वीट्स है वो क्या चीज़ से डेकोरेट किया हुआ है? सिल्वर एंड गोल्ड लीव्स। देन
The child stared open-eyed and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet. और बर्फी देख के चाइल्ड जो है उसके मुंह से जो है वो पानी निकल जाता है, उसको बर्फी खरीदने का मन कर रहा है. आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड. वो धीरे से बोलता है कि आई वॉन्ट द बर्फी. बट ही हाफ न्यू एज he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. Heeded means paid attention. वो हाफ जानता था कि वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे और क्या बोलेंगे, ही वॉज ग्रीडी, वो बहुत लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और आंसर बिना सुने हुए ही वो आगे बढ़ जाता है. देन अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. और आगे जैसे ही वो बढ़ता है तो अब कौन मिलता है, अ फ्लावर सेलर. अब वो क्या चिल्ला रहा है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. गुलमोहर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ flower. The child seemed irresistibly drowned. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. अब the child जो है appeared irresistibly drowned means वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो बास्केट की ओर बढ़ता है जो कि फूलों से भरे हुए थे. एंड वो धीरे से बोलता है कि मुझे वो गार्लैंड चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को जानता था कि वो रिफ्यूज़ कर जाएंगे, रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वे चीप. वो बोलेंगे कि वो फ्लावर्स जो है वो अच्छे नहीं हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना आंसर सुने हुए ही वो आगे बढ़ जाता है. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. अब आगे बढ़ता है तो वो क्या देखता है कि मैन जो है वो एक पोल पकड़े हुए है डंडा जैसा, और उसमें किस किस कलर के बलून्स लगे हुए हैं, येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल, और सभी फ्लाई कर रहे हैं. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर silken colors and he was filled with overwhelming desire to possess them all. The child जो है ना वो सारे कलर्स देख के, रेनबो कलर्स, एकदम ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, वो जो प्यारे प्यारे कलर थे, वो अपने आप को रोक नहीं पाया. एंड फिल्ड विथ ओवरवेलमिंग, अ वेरी स्ट्रांग, ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है, वेरी स्ट्रांग डिजायर, एकदम चाहत हो गया कि नहीं मुझे वो बलून्स चाहिए. But he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys. वो उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि तुम जो हो वो बहुत बड़े हो उन बैलून्स को खेलने के लिए. सो ही वॉक ऑन फादर, और वो आगे बढ़ जाता है. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. तो फिर आगे जब बढ़ता तो क्या देखता है, अ स्नेक चार्मर, एक सपेरा है, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट. फ्लूट क्या होता है, जिसे सपेरा जो बजाता है, बीन. सो विच कॉइल, और जो स्नेक है वो कॉइल्ड है, कहाँ पे है, एक बास्केट में कॉइल करके वो स्नेक है रखा हुआ बास्केट में. और वो जो बीन बजा रहा, फ्लूट जो बजा रहा है, तो उसका जो हेड है, जो स्नेक का हेड है, इट रेज्ड ग्रेस इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान. जिस तरह से हंस का जो नेक होता है वो कैसे ऊपर उठ की ओर उठता है, उसी तरह से स्नेक का हेड भी जो है ऊपर की ओर उठ रहा है. while the music stole into its invisible ears, जो म्यूजिक जो निकल रही है इस फ्लूट से, इस बीन से, वो इनविजिबल ईयर्स, जो दिख नहीं रहे ईयर्स, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. वाटरफॉल ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इनविजिबल वाटरफॉल हो, और वाटरफॉल से कैसे धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देती है, उसी तरह से वो जो म्यूज़िक है उस इनविजिबल ईयर्स में जा रही है, सुनाई दे रही है स्नेक को. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. So the child went towards,
वो आकर्षित होके फिर से वो सपेरे स्नेक चार्मर के पास जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे फॉरबिडन मीन्स नॉट अलाउड हिम टू हियर, मना किए हैं ऐसा कोर्स मीन्स अनप्लेजेंट, खराब म्यूजिक सुनने के लिए, और फिर से वो आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, screamed and cried like dizzy laughter. Now, अब जब और आगे बढ़ता है तो चाइल्ड क्या देखता है? अ राउंड अबाउट, एक झूला है जो कि पूरा एकदम फुल स्विंग में बच्चे जो उसमें झूल रहे हैं। Men, women and children carried away in the whirling motion, सब मतलब गोल 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 उसमें झूल रहे हैं। Shrieked and cried like a dizzy means आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब झूला झूलते हैं तो सब लोग बहुत चिल्लाते हैं। With a dizzy confused laughter means वो हंसी में भी एक बहुत ही confusion जैसा, एक चक्कर जैसा आने जैसा आवाज़ निकलता है, सुनाई देता है। The child watched them intently, carefully, intently का मतलब carefully, and then he made a bold request, एक बहुत ही bold request लिया। I want to go on the roundabout, please, father, mother। तो वो अपने फादर मदर को इस बार एकदम बहुत ही रिक्वेस्ट किया, बोल्ड रिक्वेस्ट किया कि नहीं, मुझे इस बार तो राउंड अबाउट में जाना ही है। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। तो इस समय कोई रिप्लाई नहीं आया, न नो का न यस का। तो वो बच्चा टर्न करता है। दे वे नॉट देयर, वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं थे। अहेड ऑफ हिम ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, चारों तरफ देखता है। they were not there, वो लोग उधर भी नहीं थे। he looked behind, वो पीछे भी देखता है। there was no sign of them, means उसके पेरेंट्स कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। a full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood। अब जो है वो लड़का फुल डीप क्राई रोज, जोर से चिल्लाने लगता है, और उसका जो गला है वो सूख जाता है। विथ अ ड्राई जर्क ऑफ बॉडी, और वो अचानक दौड़ने लगता है। क्राइंग इन रियल फियर, आप लोग भी समझ सकते हैं कि उतने मेले में अगर कोई खो जाएगा तो कैसा लगता है, वो भी एक छोटा बच्चा, और चिल्लाता है मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंसू जो है वो गिर रहे हैं। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश फेस वॉज कन्वल्स विथ फियर, उसका जो फेस जो है, हिज फ्लश मीन्स रेड इन एक्साइटमेंट, उसका फेस जो है पूरा एकदम फ्लश्ड हो गया, रेड हो गया है। वॉज कन्वल्स मीन्स मेड सडन वायलेंट मूवमेंट विथ फियर, एकदम वो बहुत डरा हुआ है और बहुत ही वायलेंट मूवमेंट के साथ दौड़ रहा है। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर्स, मीन्स वो बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ही पैनिक वे में वो कभी इधर दौड़ रहा है कभी उधर दौड़ रहा है। हिदर एंड थीदर का मतलब होता है हियर एंड देयर इन ऑल डायरेक्शन, नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए। फादर मदर ही वेल्ड क्राइड बिटरली, वो चिल्ला रहा है फादर मदर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकम मडी, टर्बन होता है पगड़ी, और उसके जो क्लोथ हैं वो जो है एकदम ही पगड़ी जो है वो अनटाइड हो जाता है, खुल जाता है, और जो क्लोथ हैं वो मडी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, मिट्टी लग जाता है उसमें। सो टिल वी हैव डन द स्टोरी, नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू द स्टोरी and we will see what happens to the child. So till then, stay safe, stay at home.